بتایا جاتا ہے کہ جو سارے 10 مونومنٹس کو کنکر کر لے تو ایک ڈیوائن کولڈرن کی آواز سنائی دے گی۔ تب سب شوق ہو جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک مونومنٹ پر ٹرٹل بنا ہوتا ہے۔ بائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹرٹل کیا ڈرائنگ ہے، جیسے کسی آرٹسٹ نے بنائی ہے۔ تب ایک آدمی جس کا نام جن ہوتا ہے زو کو کنگریچولیشن کرنے آتا ہے، بٹ زو پھر سے مونومنٹ میں چلی جاتی ہے۔ جن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زو اس سے غصہ ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو گیا، بٹ وہ دوبارہ ایگزام دے رہی ہوتی ہے۔ جب ایگزام فنش ہوتا ہے تو وہ امپریس ہو جاتی ہے، کسی نے اس کا 7000 کا سکور بیٹ کر دیا تھا، بٹ وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے ابھی بھی ٹرٹل کا سمبل بنا ہے، اور سوچتی ہے کہ آخر اس ٹرٹل نے کتنے پلانٹ اسمبل کیے ہیں۔ تب بائی مے کو بتاتا ہے اسے 9000 سے زیادہ پلانٹ اسمبل کرنے ہوں گے، اور مے کو شک ہونے لگتا ہے، بٹ بائی بات گما دیتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زو نے 7 دن لگاتار ٹیسٹ دیا، بٹ ٹرٹل کو ہرا نہیں پائی۔ سب سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ٹرٹل ضرور کوئی بوڑھا آدمی ہوگا جسے بہت نالج ہے۔ بائی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب انہیں پتا چلے گا تو یہ میرے فین ہو جائیں گے، بٹ جن کہتا ہے کہ جو بھی اس ٹرٹل کو پکڑ کر لائے گا میں اسے ریوارڈ دوں گا۔ جو بھی ٹرٹل کے بارے میں کچھ اچھا کہتا ہے جن اسے مار رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اس نے زو کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ مے ٹرٹل کو ڈیفینڈ کرتی ہے، بٹ بائی اسے جن سے بچا لیتا ہے۔ مے بتاتی ہے کہ وہ ٹرٹل سے امپریس ہے، اس نے زو کو فیئر طریقے سے ہرایا ہے۔ مے پرے کرتی ہے کہ وہ سارے مونومنٹ کو جیتے اور اسے سیکرٹ ٹریئر مل جائے۔ بائی کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ جیتنے والے کو ٹریئر ملے گا۔ بائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یہ ایگزام پاس کرے گا۔ تب مے اس کے لیے کھانا لاتی ہے۔ مے بائی کی محنت دیکھ کر اسے اس ٹرٹل سے کمپیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح تم محنت کر رہے ہو ایک دن 10 کی کنڈنسیشن لیول ماسٹر کر لو گے، اور پھر فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لیول پر لائف بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ وہ بتاتی ہے کہ 3 طرح کی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ایک سے 100 سال اور دوسرے سے اس سے بھی زیادہ لائف انکریز ہو سکتی ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں ابھی ٹائم ہے، اور ابھی کے لیے 10 مونومنٹ ایگزامز کو کلیئر کرنے کی سوچتا ہے، اور جیتنے پر جو ٹریئر ملے گا اس سے گول ریچ کرنے میں ہیلپ ہوگی۔ تب ایک چیف کو لگتا ہے کہ ٹرٹل چیٹنگ کر رہا ہے، وہ زو سے بھی زیادہ سپیڈ میں ایگزام کلیئر کر رہا ہے۔ لی کو لگتا ہے کہ وہ ٹریئر کے پیچھے ہے۔ تب دوسرا چیف کہتا ہے کہ ہمیں انویسٹیگیشن ٹیم بنانی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ٹرٹل کون ہے۔ کچھ ہی منتھس میں ٹرٹل نے 9 مونومنٹ کلیئر کر لیے ہیں اور اسے کوئی نہیں پکڑ پایا۔ اب لاسٹ مونومنٹ رہ گیا ہے اور بھائی گھبرا رہا ہوتا ہے۔ لا انفورسمنٹ آفیسرز بھی نظر نہیں آ رہے۔ وہ چھپتے چھپاتے مونومنٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے سب اس کا باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کہتا ہے کہ اس بار میں اس ٹرٹل کو بھاگنے نہیں دوں گا، بٹ زو کہتی ہے کہ وہ صرف یہ دیکھنے آئی ہے کہ یہ ٹرٹل کون ہے۔ تب لاسٹ مونومنٹ پر بھی ٹرٹل سمبل بن جاتا ہے، اور سب ڈیوائن کلٹن کی آواز سن کر امیز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لی نے بھی 1000 سال بعد یہ آواز سنی ہے۔ بائی کو ایک آواز کنگریچولیشن کہتی ہے اور اسے ایک ٹریئر ملتا ہے۔ جب گیٹ اوپن ہوتا ہے تو سب ایک ٹرٹل شیل کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں۔ وہ ایکچولی بائی کا برتن ہوتا ہے اور سب اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ بائی بچ کر نکل جاتا ہے۔ انہیں بلیو نہیں ہو رہا کہ ایک ٹرٹل اتنا فاسٹ کیسے موو کر سکتا ہے۔ تب ٹرٹل کے فین اور باقی سب آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اور لی انہیں کہتا ہے کہ بس کرو۔ دوسری طرف بائی دیکھتا ہے کہ یہ ایک مورٹیلٹی پل ہے، بٹ اس کے ہاتھ سے پل گر جاتی ہے اور ایک بیوقوف چکن پل کھا جاتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد اب لوگ ٹرٹل کو ہیٹ نہیں کرتے اور اسے ایک مسٹیریس لیجنڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ تب بائی بیمبو لگا رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بائی 4th کی کنڈنسیشن لیول پر پہنچ گیا ہے، بٹ ابھی اس نے امورٹل بننے کی جرنی شروع ہی کی ہے۔ رات کو بائی پہلی بار انڈائنگ سکن پریکٹس کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنی سکن کو ریفائن کرتا ہے اور پھر اپنی بونز کو بار بار مسلز کو لوز اور پھر ٹائٹ کرنا ہوگا، بٹ یہ بہت پینفل پروسیس ہے۔ بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کسی بھی نارمل انسان کو اتنی بھوک نہیں لگ سکتی، اور اسے اس چکن پر غصہ آ رہا ہوتا ہے جس نے اس کی امورٹیلٹی پل کھا لی تھی۔ بائی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب سے وہ سب چکن سے بدلہ لے گا۔ بائی ایک انسیکٹ کو بیٹ بنا کر چکنز کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ صبح سب کو بتایا جاتا ہے کہ امورٹل لی کی چکنز چوری ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی عام چکنز نہیں ہیں، انہیں ریئر میڈیسن بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اس چور نے ایک ہی رات میں درجنوں چکنز چوری کر لی ہیں۔ چیف لی کسی کام سے آؤٹر سیکٹر سے باہر گئے ہیں، انہیں اس سب کا نہیں پتا۔ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اس چور کو پکڑوں۔ جو بھی میری ہیلپ کرے گا اسے میں یہ پروٹیکٹیو پینڈنٹ دوں گی۔ بائی سوچتا ہے کہ اس سے پرابلم ہو جائے گی، اور وہ کچھ کہے اس سے پہلے ایک آدمی بتاتا ہے کہ چور کو کیسے پکڑا جائے۔ بائی زو کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے چور کی ساری غلطیاں بتانے لگتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ انہیں ایک ٹیم بنانی چاہیے اور ایک ایموشنل سپیچ دیتا ہے، ہم سب مل کر اس چور کو پکڑیں گے۔ زو اس کی سپیچ سے امپریس ہو جاتی ہے اور اسے ٹیم لیڈر بنا کر اپنا ربن دیتی ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ اگر پکڑنے والا ہی چور ہو تو اسے کون روک سکتا ہے۔ بائی اگلے فارم میں پھر سے چکن چوری کرنے جاتا ہے، بٹ اسے زو کی آواز آتی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بائی سوچتا ہے کہ اب لی اسے ولیج واپس بھیج دے گا۔ بائی اسے معافی مانگنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن وہ فارمر کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ پہرا دینے کے سمے سو رہے تھے۔ بائی زو سے کہنے لگتا ہے کہ اس نے پوری ٹرائی کی، بٹ وہ چور کو نہیں پکڑ پایا
और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाई कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो, और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाय चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर खुद चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाय कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है कि उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाय को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाय जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाय अब की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाय उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है, बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाय का इमॉर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह जब बाय उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाय को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फे नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है, क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक एल्डर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमॉर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है, क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाय को हेल्प करती है और इसे देखकर बाय कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाय को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाय भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फे भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहाँ से भाग रहा होता है। ली उसे पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है। बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाय के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाय की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं है और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाय के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाय सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाय प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाय होता है। बाय इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाय कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाय भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है।
फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाय को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाय सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाय टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाय इसके पांव पकड़ लेता है। बाय फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाय को कवर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाय को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाय ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाय के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाय का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाय कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाय ने कितने प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाय ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाय के प्रोटेक्टिव टैलिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाय को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाय देखता है कि फैंग की स्वॉर्ड 2 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट रिफाइन स्वॉर्ड यूज करता है। ली बताता है कि बाय की स्वॉर्ड 3 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और सबको बिलीव नहीं होता कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाय जीत गया है और जो भी बाय की लेवल 3 स्वॉर्ड से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से ज्यादा बाय की टेक्निक से इम्प्रेस होती है। बाय होश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है। जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाय के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाय कमजोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक कर देता है। फे इजीली अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी स्किल से चैन को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहती है कि बाय आइटम यूज करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। फे और बाय फाइट करने के लिए अरीना में आते हैं। बाय उसे एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। फे कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर दूंगी। बाय वो थ्रोट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाय का पेंडेंट टूट जाता है और स्वॉर्ड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाय फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाय ने एक मूव यूज किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाय कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी लेता। सब बाय की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाय को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर पहना हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ। फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाय ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाय कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाय जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक स्वॉर्ड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि इंसेंस बहुत रेयर है जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाय अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है, क्योंकि बाय और फे दोनों ही एपोथेकेरी स्टूडेंट्स हैं। बाय मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब्स से बना है। जो भी सबसे ज्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाय फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाय के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाय कितना बेवकूफ है। फे ने मोन्यूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाय वो लेजेंडरी टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाय भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाय आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। फे बाय को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाय जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब बाय बड़ी डिटेल में इन प्लांट्स का बताता है। एल्डर भी बाय से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाय ने न सिर्फ प्लांट्स के नाम बताए हैं, साथ में ये भी बताया है कि ये प्लांट्स कैसे जोड़े गए हैं। ली मान लेता है कि बाय के पास स्किल है, लेकिन दूसरे एल्डर्स को लगता है बाय वो चीजें भी बता रहा है जिनकी जरूरत नहीं है। फे हार मान लेती है और बाय ये कंपटीशन जीत जाता है। कुछ टाइम बाद बाय कहता है कि फे ने जो सोरिंग इंसेंस दी थी सही से काम कर रही है। तब दरवाजे पर कोई आता है। बाय देखता है ये तो बाव है और इससे पहले कि बाव उस पर अटैक करे वो उसके मुंह पर झाड़ू मार देता है। बाव बाय से माफी मांगने के लिए आया है। वो बताता है कि मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि बाय रिश्वत देकर आया है। वैसे भी बाव अभी की कंडेंसेशन के लेवल 3 पर है तो बाय को उससे कोई खतरा नहीं है। बाय ने उसे पीटा,
इस वजह से बाओ स्ट्रॉन्ग बन गया है और चाहता है कि बाय इसे भी कुछ सिखाए, लेकिन बाय इंटरेस्टेड नहीं है। बाओ बताता है कि उसकी सुपरविजन डिपार्टमेंट में कनेक्शंस हैं और बाय को संभल कर रहना होगा। सबकी बाय पर नजर है और एक और दोस्त होना बुरा नहीं है। उस रात दोनों दोस्त अपनी फ्रेंडशिप के नाम पर पीते हैं और बाय उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। बाओ को लगता है कि बाय जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच जाएगा। बाय को ऐसा नहीं लगता। बाओ बताता है कि बाद में मॉर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में जाना इजी है, बस बाय को बहुत सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खानी होगी। बाय को ये बात पता नहीं थी और बाओ बताता है कि फिर बाय की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाय जल्दी से अपनी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। बाओ बताता है कि पिल मिलना तो बहुत टफ है, इसलिए उन्हें खुद ही पिल्स रिफाइन करनी होगी, लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाय फेमस हो गया है और अब वो अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाय सबसे लास्ट में टेस्ट देने आया, लेकिन 10 में से 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर ली। ऐसा पहली बार कोई कर पाया है और उसकी लास्ट पिल एक मिड लेवल पिल थी